अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुस्लिम टीवी की न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सामुद्दीन। सबसे पहले पेश है हैदराबाद डायरी की हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में IIT कॉलेज का किया इफ्तिताह। इस मौके पर मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने रियासत की तरक्की का दिलाया यकीन। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का किया मुशाहिदा। दिल्ली की तर्ज पर मेट्रो ट्रेन चलाने का किया अज़्म ज़ाहिर। मुल्क भर में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। हैदराबाद में भी बड़े पैमाने पर निकाली गई शोभा यात्रा। और तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने की रामनवमी के मौके पर खुसूसी पूजा। अफराद खानदान के साथ पहुंचे भद्राचलम के मशहूर मंदिर। और पेश खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली से तिरुपति पहुंचे, जहां उन्होंने IIT कॉलेज का इफ्तिताह अमल में लाया है। उनके हमरा मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी, वेंकैया नायडू और सुजाना चौधरी भी तिरुपति पहुंचे। इस मौके पर मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने खिताब करते हुए रियासत की तरक्की में हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। The classroom in one generation decides the philosophy of the government in the next generation. And I'd like to tell the Honorable Chief Minister that listening to these three young students speak their minds from this stage, one can envisage what kind of leadership Rayalaseema and Andhra Pradesh has given birth to and what kind of potential the youth of this region have. My request to the IIT Director Chennai, who is the mentor for IIT Tirupati, was, let's make IIT Tirupati unique unto itself. Though Tirupati is known as a world pilgrimage center, let's give something unique to students of the entire nation. I am glad to announce today that the IIT Chennai team will ensure that engineering, especially in smart infrastructure, is developed in IIT Tirupati, which will complement the dreams not only of the Chief Minister Shri Chandrababu Naidu, but also complement the work of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi, who has tasked Shri Venkaiah Naidu to ensure that our country has 100 smart cities. Beginning this year, we will see a lot of work unfold for the 100 smart cities. I am sure that IIT Tirupati complements this dream, this vision of our Honorable Prime Minister, Venkaiah Naidu ji and Chandrababu Naidu ji. Similarly, I had appealed to our mentor from IISER Pune to develop something unique in IISER Tirupati so that students from across the country can come to Tirupati and with the blessings of Lord Venkateshwara learn something unique, something new. I am happy to share that IISER Pune, which is mentoring IISER Tirupati, will ensure that earth systems and climate change, two of the most relevant, internationally accepted and thriving courses, are taught at IISER Tirupati. My compliments to both the mentor institutions and also our representative for IIIT, which will ensure that information technology, which got a huge thrust under the leadership of Chandrababu Naidu ji in the state of Andhra Pradesh and has received a revival of sorts under the Digital India dream of the Honorable Prime Minister, fructifies to the efforts of students who are blessed with this wisdom in the Indian Institute of Information Technology in Andhra Pradesh. Once again, my heartiest congratulations to the government of Andhra Pradesh, which has walked
with such synergy with the government of India to ensure that the fruits of wisdom, that the blessings of Ma Saraswati is received by every student, not only in the state of Andhra Pradesh, but also across the country through these institutions. I must admit that last month, under the guidance of Sri Venkaiah Naidu ji and leadership of our Prime Minister, and because of the persistent efforts of Sri Chandrababu Naidu, we managed to lay the foundations of IIM in Vizag, and today we are laying the foundation of 3 more national institutions in Andhra Pradesh. I am told by the Honorable Chief Minister that next month I need to return back to Andhra Pradesh to lay the foundation of a new central universities. So given your persistence and the impetus that you give to education, I am sure under the dual leadership of Sri Narendra Modi and Sri Chandrababu Naidu, the people of this region and this state feel blessed. They feel that they are on to the path of development, and it is with their efforts and with your leadership that I'm sure Andhra Pradesh will regain new heights and reach new glories. My compliments once again and congratulations to the people of Andhra Pradesh and to Honorable Chandrababu Naidu ji and चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए दिल्ली मेट्रो ट्रेन का मुआयना किया और वहां की इंतजामिया से इस मसले पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को एक हाईटेक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसके कदम के तौर पर उन्हें रियासत में मेट्रो ट्रेन मुतारिफ कराने के लिए दिल्ली की तर्ज पर ट्रेन चलाने का मंसूबा बनाया है। మెట్రోలో వచ్చాను. టెక్నికలీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. ఇండియాలో జనాభా కూడా విపరీతమైన జనాభా ఉంది కాబట్టి మెట్రో ప్రాపర్ గా చేస్తే ఈ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. పొల్యూషన్ आज हैदराबाद शहर में श्री राम नवमी के मौके पर धूलपेट में खुसूसी पूजा के बाद शोभा यात्रा शुरू की गई, जिसमें बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कायदीन और कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सिटी पुलिस की भारी जमीयत शोभा यात्रा की निगरानी और बंदोबस्त करती नजर आई। वाज़ेह है कि यात्रा सीताराम बाग से निकलकर हनुमान व्यायामशाला पर खत्म हो रही है। यात्रा के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात नाफिज किए गए हैं। याद रहे कि इस रैली में बैरूनी रियासतों से भी मुकर्रीन मदऊ किए गए थे। प्रणाम करती हूँ संत प्रवर भारती जी महाराज के श्री चरणों में। कोटि कोटि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करती हूँ। बजरंग दल के इन केरवे केसरिया रंग को अपने न की तन पर सजाने वाले, बल्कि अपने हृदय में भी केसरिया तरंगे लहराने वाले चुनौती स्वीकार गया कि यह गंगाधार तो समंदर में आकर ही मिलेगी। किसी ने कहा कि अधर्म की अहमियत चल रही है तो धर्म के लिए कब तक जलाते रहोगे? इतनी अत्याचार अधर्म की अत्याचार की अनाचार की अहमियत चल रही है तो धर्म के लिए कब तक जलाते रहोगे? तो मेरे गुरुदेव ने कहा हम धर्म के लिए तब तक जलाते रहेंगे जब तक अधर्म की आंधियां
की मर्यादा है, राम हमारा पौरुष है, राम हमारी शक्ति है। आप सबने देखा होगा, आप रोज भोजन करते हो लेकिन इतनी ऊर्जा नहीं मिलती जितनी आज राम उत्सव मनाकर मिली है, क्योंकि भोजन से ऊर्जा हम नहीं पाते। हम तो आत्म पुरुष है, हम तो आत्म आनंद है, सहजा आनंद है, निर्बंध आनंद है, राम के भक्त है। और राम के भक्त रूखे रहकर भी जब मुस्कुराते हैं और अपने कदमों के प्रहार से बड़े बड़े पहाड़। रियासती तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने अफराद खानदान के साथ जिले खम्मम में वाक़ भद्राचलम की मशहूर मंदिर में श्री रामनवमी की पूजा की और दीगर रस्मों को अंजाम दिया। इस मौके पर उनके साथ रियासत के कई वज़रा ने भी इस खुसूसी पूजा में शिरकत की। आंध्र प्रदेश रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अपने शोबे में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा रही है, जहां वो मुसाफिरीन की सहूलत के लिए वाईफाई की सहूलत फराहम करने का इरादा रखती है। APRTC ने चंद मखसूस स्टेशनों और अपनी बसों के अंदर वाईफाई की सहूलत शुरू करने का बेड़ा उठाया है, जहां शुरू के 1 घंटे में वाईफाई की सहूलत मुफ्त होगी। इसके बाद सिर्फ 10 रुपये अदा करने पर अपनी मंजिल मकसूद पहुंचने तक आप वाईफाई इस्तेमाल कर सकेंगे। आज इंदिरा पार्क धरना चौक में श्री रेणुका शक्ति सिक्योरिटी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिनको कंपनी से बगैर इत्तला दिए बरतरफ कर दिया गया है और उनकी खिदमात के हकूक़ की अदायगी भी नहीं की गई। अलावा दीगर स्टाफ को इंक्रीमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। कंपनी के एक मुलाजिम ने मीडिया से बात करते हुए अपनी शिकायत का इजहार किया और कंपनी में होने वाली ज्यादती को मीडिया के रूबरू वाज़ेह किया और कहा कि हमारा मुतालबा है कि कंपनी के मुलाजिमीन के साथ इंसाफ का बर्ताव किया जाए। बिना वजह ट्रांसफ़र किया जा रहा है और टाइम पे हम लोग को सैलरी भी नहीं मिल रहा है, वीकली आप भी नहीं दे रहे हैं। इसके वजह से हम लोग को और कोई ज़्यादा डिमांड से कोई ज़्यादा बात कर रहे हैं तो उनको ड्यूटी से निकाल दिया जा रहा है। इस वजह से एरियाज जो मतलब सैलरी बढ़ा है वो भी नहीं दे रहे, वीकली आपके पैसा सब कोई भी टाइम पे कुछ भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। इसके वजह से और कोई ज़्यादा बात किया उनको ड्यूटी से निकाल दिया जा रहा है। श्री रेणुका शक्ति सिक्योरिटी सर्विस जी प्राइवेट पर्स होना, वीडियो एरियर्स देना, बड़ेला सैलरीज देना सबको, जियो नंबर 43 के हिसाब से हमको सब बढ़ा के देना बस। और जितने जन को ड्यूटी से निकाल दिया गया उनको सब। और नाज़रीन वक्त वक्फे का, वक्फे के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का ये सिलसिला। वफ़े के बाद हैदराबाद डायरी में दोबारा आपका इस्तकबाल है। सालारजंग म्यूजियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में किताब जिसका नाम हैदराबाद डॉन मेमोरी लैंड की रस्म इजरा अमल में आई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली की गैर मौजूदगी में मेहमान खुसूसी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट गुलाम मोहम्मद यज़दानी ने इसका रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर इफ्तिखार अहमद और दीगर मेहमान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि रस्म इजरा डिप्टी CM के हाथों अमल में आने वाली थी, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो शिरकत नहीं कर सके। Current generation with the literary and socio-cultural atmosphere. कुछ यादें, कुछ बातें and appreciated by the readers. कुछ बातें released last year. Mr. Yazdani asked me to believe me when I sat down to translate. I thoroughly enjoyed the book. The book is full of interesting tidbits. यानी सीनियर एडवोकेट, इस वक्त मेरी एज 86 की है और मैं हैदराबाद के कई अदवार देख चुका हूँ। आई एम ग्रेजुएट एंड लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी और इस वक्त हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ, डेजिग्नेटेड।
और मुझे जो मौका मिला तो मैंने कलमबंद किया है तारीख़ी वाक़यात को जो मुख्तलिफ अदवार के हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के हैं। जैसे इब्तदाई गवर्नमेंट आसिफ जाही हुकूमत, फिर उसके बाद राज प्रमुख की हुकूमत, फिर उसके बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, और वैसे मैं कांग्रेस का माइनॉरिटीज़ का चीफ रहा हूँ गांधी भवन में। मुझे कई तजुर्बे थे शुरू से आखिर तक। जी क्या? हाँ, तो वजह यह है कि यह तजुर्बा मेरा होने से यह मुझे लिखने में मदद मिली, और तमाम वाक़यात इसमें ऐसे हैं जो हमारे लिए एक असासा हैं, जो हमारे नौजवान नस्ल को बहुत काम आएंगे। और इसमें जो है एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे रिकॉर्ड किया गया है। यह आर्ट बुक पे छपी है, आर्ट पेपर पे, और इसमें एल्बम भी है। तो इस तरह से जो है ये गैर मामूली अहमियत की है, और इसको कम से कम कॉलेजेस में बच्चों को जो है प्रेजेंटेशन के तौर पे भी दी जाए तो खरीद के। इसका नाम है हैदराबाद डाउन मेमोरी लेन, एनेक्डोट्स, प्लेजेंट्रीज, फ्लैशबैक एंड स्मॉल टॉक। सब मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हैं, ये खुद बताता है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं इसके अंदर। मेरे सफ़रनामे हैं, मैं जो ट्रैवल किया हूँ राउंड दी वर्ल्ड, रशिया भी गया हूँ, यूरोप भी गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, कनाडा गया हूँ, मिडल ईस्ट गया हूँ, सब जगह। और जो लोग उर्दू में पढ़े हैं वो ये कहते हैं कि पहला सफ़ा पढ़ने के बाद से आखिरी सफ़े तक वो। बलदी अहदेदारों ने बगैर लाइसेंस की दुकान चलाने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में कई दुकानात को मुअत्तल कर दिया है। अहदेदारों के तरीक़ेकार पर दुकान मालिकान ने नाराजगी का इज़हार किया है। दुकान मालिकान का कहना है कि बलदिया के अहदेदार उनकी बात सुनने तैयार नहीं है, उन्हें लाइसेंस बनाने के लिए वक्त भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही सता रहे हैं, और हर कोई ये बोल रहा है कि प्रेजेंट ईयर का चेक ले लो। चेक लेने के लिए तैयार नहीं है वो लोग। पूरा 3 इयर्स का पे करो पर है, क्योंकि मार्केट भी उतना नहीं है 3 इयर्स का पे नहीं कर सकते। और ये भी असेंबली में भी बात चढ़ी इसकी, लेकिन प्रेजेंट ईयर का लेने को तैयार नहीं है ये लोग, और बहुत ही हरासमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। जो दिल में आया वो करते रहे, जैसा कि आप देखें, आप लोग लॉक डाल के चले गए, पूरा अपनी मनमानी कर रहे हैं वो लोग, तो कारोबार में डिस्टर्ब कर दे रहे, वो दुकान में के सामान लेके चले जाते बोल रहे। कुछ भी ऐसा रोक टोक कोई नहीं है इनको, समझिए बस अपनी मनमानी कर रही है लोग। और प्रेजेंट ईयर का चेक ले लो बोले तो लेने को तैयार नहीं है। कौन मैडम आज है? मैडम असिस्टेंट कमिश्नर मैडम है बोल के बता रहे, उन्हें सुनने को तैयार ही नहीं है। ढकलना, हाथ पकड़ के खींच ले रहे बाहर। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरदारी का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुनसिफ टीवी पर खबरों और दीगर प्रोग्रामों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए। फिलहाल मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन को पूरी मुनसिफ टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।